میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس 10-20 گاڑیاں ہیں لیکن میں نے 3 سال کے گوشوارے جمع نہیں کرائے. کون سا چور راستہ ہے جو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے؟ اور جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی میں کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے. الیکشن کی گہما گہمیاں جاری ہیں. الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا اور اس شیڈول کے مطابق جو ہے 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں. 24 سے 30 تک سکروٹنی ہونی ہے. اس کے بعد اعتراضات، اپیلیں اور یہ پورا جو مسئلہ ہے مرحلہ ہے وہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے ہم پچھلے الیکشنوں کی بات کریں تو بہت سے ایسے سٹرونگ امیدوار تھے جو کہ جن کی بہت اچھی پوزیشن تھی اور حلقے میں ان کا بہت ورک تھا، جنہوں نے کامیاب بھی ہونا تھا، لیکن الیکشن کمیشن میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بعد میں جو سامنے آئی تھیں. کسی کے ڈبل شناختی کارڈ تھا تو کسی کے اثاثہ جات بیرون ممالک میں پڑے تھے جو انہوں نے شو نہیں کیے. کسی نے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی ہوئی تھی تو کسی کا کرمنل ریکارڈ تھا. ایسے تمام امیدوار جن کے کاغذات نامزدگی جو ہے کچھ چھپائیں گے یا اپنے فارم فل صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے. آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کون سے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، اسکروٹنی کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور ایسے مخالفین یا لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ چیز امیدوار نے چھپائی ہے تو کس طرح سے درخواست دے کے اس امیدوار کو نااہل کروا سکتے ہیں. ایڈوکیٹ سید جنید ممتاز شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال ہے بھجن؟ ٹھیک ہے. الیکشن جب بھی شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، چاہے سالانہ الیکشن ہو، یا چاہے ایم این اے ایم پی اے چیئرمینوں کے الیکشن ہو، بلدیاتی انتخابات، آپ ہمیشہ ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں اور آپ کے ارد گرد ہمیں جو بڑے بڑے امیدوار وہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب بھی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن قوانین کیا کہتے ہیں جب کاغذات نامزدگی فل کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے جو الیکشن کا شیڈول آیا، کن چیزوں کو جو الیکشن کمیشن نے ضروری قرار دیا ہے کہ یہ لوازمات ہیں، جیسے کوئی فیس ادا کرنی ہے، جیسے کوئی اور معاملات ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے ہیں. پورا الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پورا ایک شیڈیول جاری کر دیا ہے. اس شیڈیول کے تحت جو امیدواران ہیں ان کو نومینیشن پیپر 19 تاریخ سے آنورڈ جو ہے وہ دیے جائیں گے. اس کے بعد 20 دسمبر سے لے کے 22 دسمبر تک نومینیشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ ہے. اس کے بعد جو پبلیکیشن آف نیمز آ جائے گا. اس کے بعد 24 تاریخ سے 30 تاریخ تک سکروٹنی کا ایک پروسیس ہے. سب سے پہلے جو نومینیشن پیپر لیے کیسے جائیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. سادہ کاغذ پہ ایک درخواست دی جائے گی، شناختی کارڈ کی کاپی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے مجھے یہ بتائیں، سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. آج میں نے کاغذات جو نامزدگی جمع کروانے ہیں وہ کاغذات ہوتے کیا ہیں، کہاں سے وہ ملتے ہیں، اس میں کیا لکھا جاتا ہے اور کیسے وہ سبمٹ ہوں کہ وہ مسترد نہ ہوں؟ سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ جو انسان الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ کاغذات کیسے لے گا اور کاغذات ہوتے کیا ہیں. کوئی بھی انسان جو کہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ ایک حلقہ کا انتخاب کرے گا. اس انتخاب کا ایک آر او ہوگا جسے ہم ریٹرننگ آفیسر کہتے ہیں. پھر اسسٹنٹ آر اوز ہوں گے. آر او اور آر اوز کے اندر ایک سادہ کاغذ کے اوپر جو امیدوار ہوگا، چاہے وہ ایم این اے کا ہے چاہے وہ ایم پی اے کا ہے، وہ ایک نومینل سی فیس ہے، 30,000 ایم این اے کی ہے اور 20,000 ایم پی اے کی ہے، وہ ادا کر کے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے. اب وہ سادے کاغذ کے اوپر جو ہے وہ درخواست دے گا، شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگائے. کیا لکھنا ہوگا اس سادہ کاغذ پہ؟ کیا لکھے گا؟ وہ درخواست دے گا کہ جی میں اس حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے نومینیشن پیپر جو کہ ضروری ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے مجھے وہ جاری کیے جائیں. سب سے پہلے وہ جاری ہو جائیں گے. جاری ہونے کے بعد پھر اس کا پروسیس آ جائے گا کہ نومینیشن سبمیشن کا، جو کہ 20 سے 22 تاریخ تک ہے. نومینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے جو نومینیشن پیپر ہے اس کے اندر ایک فارم اے ہے، فارم الف، اردو کے اندر بھی ہے انگلش کے اندر بھی. فارم الف ہے اور فارم بی ہے. فارم الف کے اندر جو اس کی ایڈریسز ہوں گے، جو اس کا جو ان کے سپورٹران ہوں گے، جیسے کہ پرپوزر ہو گیا، سکینڈر ہو گیا، اس حلقہ انتخاب سے ان کا ہونا لازمی ہے. وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے.
वो होगा। फॉर्म बी के अंदर तमाम डिक्लेरेशन होगी, प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन, ऑन द नेम ऑफ स्पाउस, ऑन द नेम ऑफ चिल्ड्रन, ऑन द नेम ऑफ डिपेंडेंट्स, वो लिखना उसके लिए जरूरी है। फिर उसके बाद आपके आपके नाम जो जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि घर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है, बैंक अकाउंट एक खसूसी खोला जाएगा, वो लिखा जाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो लिखी जाएंगी। अब आपने जैसे बड़ी प्यारी बात की कि लोग नहल हो जाते थे। अब इसके बाद जो प्रोसेस आएगा, जब नॉमिनेशन पर जमा हो जाएंगे तो 24 से 30 तारीख तक स्क्रूटनी का एक प्रोसेस है। हमारे जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976, उसका सेक्शन 14 है, उसके तहत ये तमाम का तमाम जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो होगा। अब कोई भी इंसान वो ये चाहता है कि मैं किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ दरखास्त दूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये जो हमारे कवानीन है उसकी शिक के मुताबिक, ये कवानीन के मुताबिक ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। यानी कि हर बंदा जब कागजात नामजदगी जमा करवा दी उम्मीदवारों ने, तो जो भी जिसको शिकायत होगी वो आम आवाम तक वो कागजात कैसे पहुंचेंगे, किसने ये चीजें लिखी हैं और ये चीज ये नहीं लिखी, कोई मुखालिफ दरखास्त दे देता है, तो कौन कैसे उन तक ये चीजें पहुंचेंगी, वो कागजात, वो उनका राइट है, क्या वो ले सकते हैं, और एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होगा? जब ये 22 तारीख के बाद नॉमिनेशन पेपर जमा हो जाएंगे तो पब्लिकेशन ऑफ नेम्स होगा, एक लिस्ट आरओ अपने ऑफिस के बाहर उसको चस्पा करेगा। कोई भी इंसान अटेस्टेड कॉपी हासिल कर सकता है, किसी भी नॉमिनेशन दरखास्त दी जाएगी सादा कागज के ऊपर कि मुझे फलाना कैंडिडेट फलाना लिस्ट के अंदर जो फलाना जो इंसान है उसके ऊपर मुझे एतराज लगाना है और मुझे उसके कागजात नामजदगी की अटेस्टेड कॉपी चाहिए तमाम एनेक्स्टर्स के साथ। अब वो जाहिर है जिसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए होंगे उसने तमाम एनओसीज लगाई होंगे, उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल की एफडीआर से लेके लगाई होंगी जो कि उसने जमा की होंगी। ये तमाम चीजें जब वो साथ लगाएगा तो कोई भी इंसान उसके ऊपर एतराज उठा सकता है। जब वो उसके ऊपर एतराज उठाएगा तो जो आरओ होगा वो 24 से 30 तारीख तक कैंडिडेट को पर्सनली उसको बुलाएगा। उसके साथ वो जरूरी है कि जब कैंडिडेट को बुलाएगा तो कैंडिडेट्स को चाहिए कि अपने साथ प्रपोजल और स्कैंडर को भी लेके जाए और तमाम वो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जमा करवाए हैं उनको वहां जाके उनको डिफेंड करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये जायदादें जो है हमने कैसे हासिल की। आया वो अगर वो पहले एमएलए एमपी हजरात रह चुके हैं तो आया वो उन्होंने सही प्रोसेस के तहत तैयारी की या उन्होंने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने वो जायदादें जो है वो हासिल की। तो कोई भी इंसान उसके ऊपर जो है वो एतराज यानी एप्लीकेशन दे सकता है और फिर उसको साबित भी करना होगा। अच्छा जुनेद भाई, आप ये भी हमें बताएंगे क्योंकि आप कागजात नामजदगी जमा भी करवा रहे थे, माजी में हमने देखा बहुत से उम्मीदवार नायल हुए, किसी की डिग्री जाली थी तो किसी का लाइसेंस जो शनाख्ती कार्ड डबल था, कोई दोहरी शौरियत का हामिल था, तो किसी का जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी। कौन से क्राइटेरिया है जो रखा गया है उसकी जानिब से, अगर कोई एक बंदा जिसने 3 साल की अपनी उम्मीदवार ने नहीं एफबीआर में गोशवारे जमा करवाए और ना ही उसके पास इतने असासे हैं, मुझे यहाँ पे 2 चीजें हैं कि कौन से क्राइटेरिया है जिसपे नायल किया जा सकता है। नंबर 2, ऐसा इंसान उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है और उसने टैक्स गोशवारे भी जमा नहीं कराया क्योंकि उसके नाम नहीं है, तो वो भी अहल हो सकता है। बड़ी प्यारी आपने बात की। देखें जो भी एफडीआर के कवानीन है उसके तहत वो गोशवारा जमा होना है। ऐसा इंसान जो कि एफडीआर के कवानीन के तहत क्वालिफाई ही नहीं करता गोशवारा जमा कराने की, तो वो रिटर्निंग अफसर को दरखास्त देगा कि मैं सेक्शन 114 जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत गोशवारा जमा कराना लाजमी है, मैं उसकी क्वालिफिकेशन पे ही पूरा नहीं उतरता, तो आरओ हजरात उसको जमा करवाने का एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि आरओ हजरात इसी चीज पे इन्हिसार करते हैं कि एफडीआर से आप डेटा लें, क्योंकि वो डेटा एफडीआर के अंदर ही जमा होना है उसका जो एक्सेस है वो एफडीआर के पास ही है। कोई भी इंसान उस डेटे के ऊपर, जो भी कैंडिडेट उस डेटे के ऊपर इन्हिसार करेगा तो जाहिर है वो आरओ हजरात भी उसी ही अथॉरिटी से, उसी ही रेवेन्यू अथॉरिटी से उसका जो है वो डेटा लेंगे। अब जब आपने बात की कि ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जिसमें वो नायल हो सकते हैं, आर्टिकल है हमारा 62 और 63, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो आर्टिकल 62 और 63 के तहत ऐसे लोग जो कवानीन जो कवानीन है हमारे वो बड़े सख्त हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने दोहरी शहरियत ली होगी, डिग्री का इस टाइम नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने पहले जाली डिग्री की हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर हो, टैक्स में निगरान हो, पब्लिक मनी कोई नैब से वो क्रिमिनल कोई उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई हो या उनको कुछ सजा याफ्ता हो,
FIR वाले जो है अगर वो सजा याफ्ता हो चुके हैं, तो ऐसे लोग सिक्योरिटी के अंदर अगर उन पर एतराजात लगे या RO के नोटिस में आ जाए या कोई जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको बताए, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल किया हो, ऐसे लोग वो जो है स्क्रूटनी के अंदर वो सारे के सारे नाअहल हो जाएंगे। नाअहल हो सकते हैं। मुझे ये भी बताएंगे उम्मीदवार जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने कागजात नामजदगी में किन चीजों का ख्याल रखें? आपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए कि अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ तमाम डिपार्टमेंट के NOC, जैसे कि वापडा का NOC, जैसे कि सुई गैस के NOC, जैसे कि FBR का बार बार इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में हमें नजर आ रहा है कि जो डिक्लेरेशन है और नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। FBR से आपने NOC लेना है, फिर जिनकी एग्रीकल्चर जमीनें हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है वो उसका NOC लेंगे कि मैंने तमाम टैक्सेस जो मेरे ड्यू थे वो मैंने अदा कर दिए, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बिजनेस करते हैं, तो हमारा EOBI का इदारा है, वो उधर पैसे देने होते हैं, सोशल सिक्योरिटी के हमारे डिपार्टमेंट है उनको हमने पैसे देने होते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन को प्रोफेशनल टैक्स की मद में वो पैसे। ऐसे लोग जो इन चीजों के नायल होंगे और जिन्होंने पैसे नहीं जमा करवाए होंगे टैक्स की मद में, वो तमाम लोग जो है वो उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा और वो नायल होगा। आखिरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे करप्ट उम्मीदवार या ऐसे उम्मीदवार जिनके मुखालिफ या कोई शहरी उनके बारे में ऐसी चीज जानता है जो उसने अपने असाजात में या अपने फार्म में छुपाई होगी, तो उसको नाअहल करवाने के लिए किस तरह वो किरदार अदा कर सकते हैं और ऐसे करप्ट लोगों को आगे आने से किस तरह रास्ता रोका जा सकता है? इस वक्त क्या करें वो लोग जो उनको नाअहल करवाना चाह रहे हैं? देखिए जी, डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, वोट की जो ताकत है, उसका इस्तेमाल हर इंसान के लिए लाजमी है। आप ऐसे लोगों को चुना करें जो उस वोट की कदर करें और जो उसके अहल हों। अब आपने कहा कि करप्ट अनासिर, लेकिन जब आप किसी कैंडिडेट का लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया का दौर है, ऐसा मवाद हर जगह मौजूद होता है, लाइफस्टाइल से पता लग जाता है कि गोशवारों के अंदर उसने मिल की रिटर्न जमा की हुई है और उसके पास 8-10 गाड़ी है, उसके बच्चों के पास, बड़े बच्चे जो हैं उसके अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आया जो आमदनी उसने डिक्लेयर की है उसके अखराजात को वो जस्टिफाई करती है? ये इसका मेन क्राइटेरिया। मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ, मेरे पास 10-20 गाड़ियां हैं, लेकिन मैंने 3 साल के गोशवारे जमा नहीं कराए। कौन सा चोर रास्ता है जो आप बता सकते हैं इन चीजों से बचने के लिए? देखिए, चोर टैक्स एवेजन तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन जो एसेट की नॉन डिक्लेरेशन है उसके ऊपर ऐसा कोई नहीं है। एसेट की डिक्लेरेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। आप इलेक्शन कमीशन के लॉज जानते भी हैं, अगर कहीं कोई कोताही है और वो आगे जो है वो इस तरह की कोताही में नहीं पड़ना चाहता, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो कोई रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, रास्ते तो होते हैं, फिर जो केस टू केस डिपेंड करता है कि वो जाहिर है उसके डॉक्यूमेंट्स देख के आइडिया होगा कि वो। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स देख के आइडिया होगा। से जुनेद मुमताज शाह जो कि इलेक्शन कवानीन के माहिर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनका ये कहना है कि अगर कहीं गलती कोताही हो जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन के जो माहिर वकला हैं उनसे रब्ता करके अपने आप को नाअहल होने से भी बचा सकते हैं।